Assalamu alaikum. Now I have completed the unit 3rd and unit 2nd. We're starting today unit 4th, that is the flexional organometallic compounds. This unit will consist of these topics: general characteristic of these flexional compounds, rate of rearrangement and technique of study. How will we study the flexional behavior? For example, the technique which is used in this case is NMR. And then is classification of flexional organometallic compounds, and some examples of non-rigid molecules of 4 and 5 coordination geometry. And another topic will be the flexional dynamic equilibrium, for example, in compounds 2-olefin, allyl, and dinyl complexes. This topic is very much interesting and it is not too much lengthy. Hope so you will understand this fully, inshallah. First of all, I will discuss about this molecules are dynamic and organometallic compounds are quite dynamic and flux. That is the meaning of the term flexionality. Molecules are dynamic, that is the meaning of the term flexionality. In fact, there are several instances where the molecules behave almost like gymnasts. So we will talk about the molecular gymnastics. What this means? We are looking about the static crystal structures, but molecules are not static, and they keep walking. They can sometimes talk, and many times they are dancing all the time. So if we want to think a molecule as a static picture, you're missing out what it can really do and what it is really doing. That is the important. That is, static crystal is walking, talking, dancing. You will see in this unit, this whole unit is about this. Now, you will see here, first of all, I will give the general description about this unit. There are two main things which we have to distinguish between these two. One is the rearrangement and another is the flexional. What is the difference between flexional and the rearrangement? Both rearrangement and flexionality come into this group, and the rearrangements. Rearrangements, if we talk about the rearrangement, in case of rearrangement, for example, in case of keto-enol tautomerism, जो आप जाके ज़्यादातर आपको याद होगा इसके बारे में, keto-enol tautomerism, there is a non-equivalence of two or more structures. वहाँ पे जो जाके structure बनते हैं, that are non-equivalent structures, that are not equivalent structures. For example, if you see here in this rearrangement, यहाँ पे जाके ये अलग और ये अलग totally different है. These are called as non-equivalent structures. इसी तरीके से यहाँ पे जाके देखेंगे 1,5 this and this octadiene, and यहाँ पे जाके भी देखेंगे, तो इन सब में जाके क्या होता है कि there is a non-equivalent structure. Non-equivalent structure जब यहाँ पे जाके देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जाके these structures जो exist कर रहे molecule के with different instantaneous identity, such process of interconversion is called tautomerism. ठीक है बेटा? And has been known in case of organic molecules for a long time. But if you see this, in this case, there are two or more configurations that are equivalent in structure, bonding, and energy content. And such molecules are called flexional. When there is no non-equivalent structure, but this structure and this structure are equivalent, and then it is called as flexional, not isomerism, not tautomerism or anything. And alternate terms are also used for this, that is stereochemical non-rigidity. Flexional molecules के लिए जो दूसरी term use होती है, that is the
stereochemical non-rigidity. Remember this. Stereochemical non-rigidity is nothing but it is a fluctuality. Okay. Now you will see first example in which you can see what happens here. In case of this FeCO5, in FeCO5, this is a mononuclear metal carbonyl, and you will see in this carbon 13, and this is a pentagon TBP, trigonal bipyramidal structure is there. And what happened here? If you see these two structures are equivalent structures. इसमें क्या होता है कि जाके अगर आप इन दोनों में जाके देखेंगे, this carbonyl in the equatorial position changes the position to the axial position. It goes to the axial position. फर्क इतना ही है. अगर जाके हम यहाँ पे लेबल नहीं करेंगे, you cannot differentiate between these two configurations because both the configurations are equivalent. तो यहाँ पे जाके आपको ये चीज याद रखना बेटा कि जाके these are equivalent structures. हमने जाके इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक कार्बोनाइल कार्बन को यहाँ पे जाके लेबल किया कार्बन 13 से, so that we will see what happen here. तो जाके यहाँ पे जाके जब ये देखने को मिला कि the structure in which the carbonyl group was at equatorial position, now in the second configuration this carbonyl group is in the axial position. And this process, how this process occurs, you will see here. This is a famous, this Beresford rotation occurs in these complexes. In case of FPF5, you will see also that example. इसमें होता क्या है, अगर आप देखेंगे बेटा, इसको ध्यान से आप देखें. अगर यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल जो एक यहाँ पे यूज किया है वर्ड दैट इज फॉर एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल के लिए यूज किया, एंड पी विल रिमेन स्टैटिक, इट विल नॉट चेंज. ठीक है, ये पीस ये CO5 है, FeCO5 है, बट इस यहाँ पे जाके समझाने के लिए इस तरीके से दिखाया गया. तो जो एक्सियल है, ध्यान दो बेटा, अगर आप एंगल देखेंगे यहाँ पे दिस एक्सियल FE एंड दिस A, इसका जो एंगल है दैट इज 180. नाउ दिस एंगल विल डिक्रीज. अगर ये 180 है तो 180 से कम होता जाएगा, एंड दिस आयरन इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 120, ये जाके एक्सपैंड होगा. दिस एंगल विल एक्सपैंड एंड दिस विल कंप्रेस. अब जाके देखिए बेटा होता क्या है, एक्सल वाला जाके क्या हुआ, यहाँ पे पूरा ध्यान देना, यहाँ पे जाके एक्सल जहाँ पे कंप्रेस हुआ और जाके इक्वेटोरियल एक्सपेंड हुआ. जब जाके ये हुआ तो यहाँ पे जाके जो यहाँ पे ये वाला लिगेंड है दैट विल रिमेन एज स्टैटिक. तो ये जाके यहाँ पे बन रहा है. अगर आप इसको जाके अच्छी तरह से देखेंगे, अब अगर इसको 3D में जाके व्यू करेंगे, उस पी को ऊपर रखेंगे हाथ में आप, तो नीचे आपको एक बेसल लाइन बनेगी. ये आपकी जाके अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो आपको ये बनेगा स्क्वायर पिरामिडल. ये जो शेप बन रही है ये वाली शेप, दिस बिकम द स्क्वायर पिरामिडल. ठीक है बेटा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से इसको समझिएगा. दिस शेप विल बिकम द स्क्वायर पिरामिडल, दिस विल बिकम SP, स्क्वायर पिरामिडल. तो ये वाला TBP था. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, आप जाके इस पे देखना, पूरा ध्यान देना इसमें. अब क्या होगा, अब जो इक्वेटोरियल था जो एक्सपेंड हुआ 120 से यहाँ पे जाके थोड़ा, और जाके एक्सल क्या हुआ 180 से यहाँ पे कंप्रेस हुआ. अब इक्वेटोरियल पूरा का पूरा एक्सपेंड होके 180 पहुंच जाएगा, मतलब इक्वेटोरियल पहुंच जाएगा एक्सल पे, और एक्सल आएगा बनाएगा 120 एंगल एंड इट विल फॉर्म द इक्वेटोरियल. अगर आप इसको देखेंगे, इस वाले को आप देखेंगे, फिर से TBP फिर से बन गया. इसमें जाके जो AA आया वो आया इक्वेटोरियल पोजीशन पे. आप जरा देखो इसको, AA जो आया वो आया कहाँ पे, वो आया यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक्सल पोजीशन पे यहाँ पे आया, यहाँ पे दिस इक्वेटोरियल वाला आया एक्सल पोजीशन पे. तो इस तरीके से ये इस तरीके से बनता है. ठीक है, तो ये पूरी जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली होता रहेगा, फिर से जाके होगा कंटिन्यूअसली, ये वापस आएगा. ये 1 2 3 से यहाँ पे जाके दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे होता है. 3 इधर जाएगा, फिर जाके 3 और 4 इधर पहुंच गया, फिर 1 2 इधर, फिर से चला जाएगा, फिर एक्सल इक्वेटोरियल. एंड दिस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस यहाँ पे जाके हो रही है,
दिस इंटर कन्वर्जन कैन बी मेजर्ड, क्या इसको मेजर कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ आयरन कार्बोनाइल द रेट इज एक्सट्रीमली फास्ट, द रेट इज एक्सट्रीमली फास्ट, क्योंकि जाके टाइम फ्रेम होता है किसी कन्वर्जन का। जैसे आपने रेस्मेजेशन में पढ़ा होगा, कुछ रेस्मेजेशन जब आप सेपरेशन करते हो, रेस्मेजेशन रेस्मिक मिक्सचर में जाके आप सेपरेशन करते हो, तो वहां पे एनर्जी बैरियर होता है। वो अगर वो एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा है तो सेपरेशन आप इजीली कर सकते हो, बट इफ द energy barrier is very low and the interconversion is very fast, you cannot separate that racemic mixture. तो इसी तरीके से यहाँ पे जाके जिस टेक्निक से आप इसको जाके आइडेंटिफाई करना चाहते हो, अगर ये उससे बहुत ज्यादा फास्ट है, जिस रेट पे जाके वो जाके वहां पे ऑब्जर्व करता, एनएमआर फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं इसके लिए, बट उसकी जो जाके टाइम फ्रेम है जिसको ये देखता है कि ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल है और ये स्क्वायर पिरामिडल है, फिर जाके उसके बेस पे अलग अलग यहाँ पे पीक्स आते हैं, बट जाके वो इसको जाके ये इतना रेट फास्ट है, it cannot be seen through NMR. It is difficult to observe this type of interconversion. तो जाके बहुत ही डिफिकल्ट है ये। तो जब इसका जाके कार्बन 13 NMR देखते हैं, it is not possible to arrest the interconversion easily. तो हम जाके इसको TBPN and this cannot be separate out. जाके ये नहीं होता है, हम जाके NMR के जरिए से इसको नहीं देख पाते इजीली। फिर जाके क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये फिर कैसे पता चला। तो अदरवाइज आप बोलेंगे कि सर ऐसा होता ही नहीं, तो फिर आप कैसे बताते हो ये थेटिकल, बट इट इज नॉट थेटिकल, इट इज प्रैक्टिकल। आप देखेंगे किस तरीके से फिर रेट ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से सीज किया जाता है इसको। तो हम यहाँ पे जाके एक बात याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि दिस इज बिकॉज जस्ट लाइक एनी लिविंग सिस्टम दैट reaches the breathing is essential for the molecule and is done very fast rate. So the fast that you cannot notice it when normal spectroscopic means. ठीक है, तो next slide I will show you. Here you will see the molecular bathing, how molecular bathing occurs. In this case, you will see here, and similarly there are number of other molecules. Here is molecular bathing, how molecular bathing occurs. There is one more is metal hopping is there. I will discuss it later. And another is, that is I think this will be here. Metal hopping is there, molecular bathing is there, and carbonyl hopping is also there. I will discuss it later. First I will take this now, फ्लैक्शनलिटी। दिस जो यहाँ पे जाके फ्लैक्शनलिटी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी इनऑर्गेनिक में जाके आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा अमोनिया के बारे में। दिस अमोनिया is converted into, it inverts, and the energy barrier between these two are very, very less. And this interconversion is very fast. We cannot determine this and this configuration because the conversion is very fast. And this is known as stereochemically non-rigidity. आप यहाँ पे जाके देखेंगे, आप इसको थोड़ा सा देख भी सकते हो कि the atom executes approximately harmonic vibration about the equilibrium position, but in other respects the structure may be considered rigid. However, many cases in which the molecular vibration intermolecular rearrangements carry a molecule from one nuclear configuration into another. When such process occurs at a rate permitting detection by some physical and chemical means, the process is designated as stereochemical non-rigidity. अब मसला यहाँ पे जाके एक चीज होता है, देखो बेटा, यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मोर इन केस ऑफ टू आर मोर कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट केमिकली इक्विवेलेंट, अगर केमिकली वो इक्विवेलेंट नहीं है, इन दिस केस द प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्जन कॉल्ड आइसोमराइजेशन, तब जाके इसको सिंपली हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। बट इन अदर केसेस द टू आर मोर कॉन्फ़िगरेशन आर केमिकली इक्विवेलेंट एंड आर कॉल्ड फ्लैक्शनल मॉलिक्यूल्स। ये डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना है। दिस डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर कि जाके rearrangement में और जाके इस फ्लैक्शनलिटी में क्या फर्क है, इसको जाके आप याद रखिएगा बेटा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैक्शनल एंड नॉन। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो एनएमआर टेक्निक है, यहाँ पे जो एनएमआर टेक्निक है, दिस एनएमआर टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ दिस
but the existence of stereochemical non-rigidity can be revealed in NMR spectroscopy. Since the time scale जो है, that is important, that will be the another topic, is typically in the range of 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 5 per second. The rearrangement takes place at the rate processing with activation energy. हर एक rearrangement जो होता है वो activation energy पे depend होता है. जितना जाके यहाँ पे interconversion में एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी उतना रेट कम होगा. अगर ये रेट यहाँ पे जाके एक्टिवेशन एनर्जी कम जरूरत है तो जाके रेट विल बी वेरी वेरी फास्ट. अमोनिया के केस में अगर आप देखेंगे, अमोनिया के केस में आपको वही चीज देखने को मिलता है बेटा कि अमोनिया में जाके द एनर्जी बैरियर फॉर दिस एंड दिस इन्वर्जन, जो इन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है इसके बीच में जो रेट है दैट इज द एक्टिवेशन बैरियर इज लेस देन 25 किलो जूल. तो अगर आप इसमें जाके देखेंगे देयर आर सर्टन, अगर हम जाके इसको आप सीज करना चाहेंगे फिर जाके देखेंगे इसको, हमें जाके इस अमोनिया को जाके सबस्टिट्यूट करना होगा. हमें कायरल अमाइनस भी बना सकते हैं, कायरल फास्फिनस भी बना सकते हैं. बाद में जाके उनको वहां पे जाके देख सकते हैं कि उनमें जाके किस तरीके से ये चीज देखने को मिलता है, इन्वर्जन किस तरीके से होता है वहां पे. फॉर एग्जाम्पल यू विल सी हियर 4 coordinated nickel complex, this one undergoes square planar to tetrahedral rearrangement with the activation barrier of 45 kilojoule per mole and the rate is about 10^5 per second at room temperature. आप जाके इसको पेज नंबर 198 हुई पे जाके अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हो. देयर इज अ डिटेल, ये जाके इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप उसको वहां पे भी देख सकते हो. तो पेज नंबर 198 वहां पे जाके टॉपिक है एटॉमिक इन्वर्जन, यू कैन सी दैट टॉपिक आल्सो. नाउ you will see here another example, that is the stereochemical non-rigidity in case of TBP, जो मैं भी डिस्कस कर रहा था. अब यहाँ पे जाके NMR को लेके मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा क्या होता है यहाँ पे जाके और किस तरीके से होता है. जैसे मैंने FeCO5 में डिस्कस किया अभी कि FeCO5 में क्या होता है वही जाके यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे मैं NMR से आपको ये डिस्कस करूंगा. ये आपके सिलेबस में भी है, मैं बताऊंगा कहाँ पे आएगा ये. तो जाके जो यहाँ पे FeCO5 जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, FeCO5 हमने डिस्कस किया एंड जाके वही एग्जांपल उसी तरीके से यहाँ पे जो एग्जांपल है दैट इज PF5. अब PF5 में क्या होता है कि PF5 में जो यहाँ पे आप देखेंगे इन PF5 देयर आर 3 इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम्स एंड 2 एक्सियल फ्लोरीन एटम्स. तो जब इसका जाके NMR देखा गया, NMR क्या होगा यहाँ पे जाके, क्योंकि फास्फोरस इज आल्सो NMR एक्टिव. फास्फोरस NMR जब देखा गया, जिस तरीके से आपने ये पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, आई होप सो कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लोरीन NMR भी होता है, फास्फोरस NMR भी होता है. यहाँ पे जाके फ्लोरीन NMR जब इसका देखा गया, फ्लोरीन NMR स्पेक्ट्रम, इसमें जाके जो एक्टिव है फ्लोरीन का भी कितना होता है, I इज इक्वल टू हाफ, एंड इसका जो यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे फास्फोरस 31 का भी जो I होता है वो भी हाफ होता है. इसका मतलब यहाँ पे देयर विल बी नंबर ऑफ, अगर हम देखेंगे जनरलाइज करके इसका NMR अगर स्टडी करेंगे तो इक्वेटोरियल है, यहाँ पे जाके इक्वेटोरियल का जो केमिकल इन्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एक्सियल. तो जाके एक्सियल अलग पीक देना चाहिए और इक्वेटोरियल अलग पीक देना चाहिए, जो हम जाके सोच रहे हैं. मतलब अगर हम देखेंगे, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एक्सियल पोजीशन, तब क्या होना चाहिए, दिस एक्सियल पोजीशन जो यहाँ पे जाके एक्सियल पोजीशन है, दिस एक्सियल पोजीशन विल बी स्प्लिट इनटू 2 विद द हेल्प ऑफ दिस फास्फोरस. फिर जाके फर्दर क्या होगा, 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस है फ्लोरीन के, वो भी इक्विवेलेंट है, वो जाके फर्दर उस डबलेट को उस जाके वहां पे फर्दर करेगा, इसको क्वाड्रेट में जाके वो स्प्लिट करेगा. ऐसा होना चाहिए, दिस विल बी, जो हम सोच रहे थे वो ऐसा होना चाहिए, ऐसी पीक्स आनी चाहिए. इसी तरीके से इक्वेटोरियल में जाके पहले जाके यहाँ पे डबलेट आएगा इक्वेटोरियल का, ऑल इक्वेटोरियल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, तो जाके पहले डबलेट मिलेगा, बाद में डबलेट को जो दो यहाँ पे जाके फ्लोरीन जो एक्सियल पोजीशन पे है N इज इक्वल 2 है, 2Ni+1 के हिसाब से, अगर आप देखेंगे 2Ni+1 के हिसाब से ये जाके फर्दर क्या होगा, बनाएगा ट्रिपलेट. इसका मतलब हमें जो मिलना चाहिए, हमें जाके 2 क्वाड्रेट मिलेंगे यहाँ पे जाके, क्योंकि एक्सियल पोजीशंस आर सेम. तो एक एक्सियल पोजीशन पहले देगा डबलेट, वो ये जाके डबलेट देगा, फिर जाके डबलेट को ये जाके क्वाड्रेट में ये, तो 2 क्वाड्रेट होने चाहिए और जाके 2 ट्रिपलेट होने चाहिए.
ये हमारे पास आना चाहे F19 NMR स्पेक्ट्रम, बट ये चीज नहीं देखने को मिलता है। रिमेंबर दिस, ये आपको जाके वहां पे नहीं मिल रहा है। अगर आपको NMR में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी। तो जाके यहाँ पे जाके ये जाके बेटा नहीं देखने को मिलता है। फिर से मैं एक बार डिस्कस करूंगा। एक्सेल पे जो फ्लोरीन है, ये भी NMR एक्टिव है, और दिस फास्फोरस इज NMR एक्टिव। फ्लोरीन का जो NMR जो सिग्नल होगी वो जाके सुप्लिट होगा, वो बनाएगा डबलेट, एंड दिस एक्सेल एंड दिस एक्सेल आर इक्विवेलेंट। इसलिए जाके ये दोनों जाके एक ही पीक देंगे, दैट इज द डबलेट पीक। दैट डबलेट पीक will be further split into quadrat because of these three equivalent fluorines will split that doublet into quadrat, two quadrats, ठीक है, quadrat of quadrats। इसी तरीके से इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाके होगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पहले देगा डबलेट, फिर जाके जो JPF होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट होगा JPF, एंड फर्दर फिर क्या होगा कि इक्वेटोरियल जो एक्सेल पोजीशन पे 2 है, वो जाके फर्दर इसको क्या करेंगे, क्योंकि तीनों इक्विवेलेंट इक्वेटोरियल फ्लोरीन आर इक्विवेलेंट, इसलिए जाके एक ही डबलेट मिलेगा इनका। फिर जाके फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन को इस एक्सेल की वजह से, इन दो फ्लोरीन की वजह से यहाँ पे जाके 2Ni+ से जब हम निकाले तो ट्रिपलेट 2 देगा। तो बट ये जाके आपको नहीं मिल रहा है। मिल क्या रहा है आपको? आपको ओनली 2 पीक्स आर देयर, ओनली डबलेट, वहां पे जाके आपको सिर्फ डबलेट मिल रहा है। आपको यहाँ पे जाके ये वाला ग्राफ नहीं मिल रहा है, बल्कि जाके आपको सिर्फ डबलेट मिल रहा है। पीक जो आपको मिल रही है दैट इज ओनली डबलेट। तो वो डबलेट क्यों मिल रही है? व्हाई इज ओनली डबलेट इज सीन? क्यों डबलेट मिल रहा है आपको? आपको क्यों नहीं मिल रहा है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वी विल एक्सपेक्ट दिस पैटर्न ऑफ ग्राफ इन NMR, बट वी फाउंड ओनली दिस doublet. We found doublet pattern in this case PF5। अब यहाँ पे जाके ये समझने के लिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पे जाके ये चीज आपको फिर से आपको एक बार यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। इस रोटेशन को बोलते हैं Beredicido रोटेशन, ठीक है। केमिकल नॉन region is continuously changing its structure and is known as flexural behavior. The mechanism that accounts for the behavior of PF5 is known as Beredicido rotation। इस मैकेनिज्म को जो जाके दिखा रहा है, इसको बोलते हैं Beredicido रोटेशन। होता क्या है यहाँ पे जाके, अगर आप देखेंगे PF5 में 1-2 जो होगा, P F1 F2 जो एंगल होता है वो 180 होता है, और जाके P3 एंड F3 एंड F4 जो होता है 120। अब क्या होता है? श्रिंकिंग होता है, एक का श्रिंकिंग होता है, एक का एक्सपेंड होता है। मतलब ये वाला 1-2 वाला जो होगा वो श्रिंक होगा, और ये वाला एक्सपेंड होगा। जब एक्सपेंड होगा तो जाके ये बनाएगा स्क्वायर पिरामिडल। फिर स्क्वायर पिरामिडल बनाने के बाद अब क्या होगा, जो जाके 1 and 2 होगा वो बनाएगा ना एंगल बनाएगा 120। जब वो 120 एंगल बनाएगा, जो मैं आपसे बात कर रहा था, और F3 F4 जो बनाएगा वो बनाएगा 180। इसका मतलब 3 and 4 आया ऊपर, एंड 2 and 1 आया यहाँ पे जाके। इस तरीके से एक्सेल इक्वेटोरियल में एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो एक्सेल इक्वेटोरियल चेंज के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो 1B को पहुंचने के लिए इसको थ्रू 2 में जाना पड़ेगा। मतलब इसको जाके स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बन रहा है इसके थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। इन द होल प्रोसेस F5 जो है that does not change if the process takes place faster than the NMR time scale in the NMR experiment, only one set of fluorine is seen। अब जाके क्या होता है कि ये इतना फास्ट होता है, NMR जाके इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि these are axial and equatorial position। ये बात है यहाँ पे। वही बात वहां पे भी है, FeCO5 के केस में भी है कि वहां पे क्यों ओनली डबलेट मिल रहा है। वहां पे भी यही चीज देखने को मिलता है कि वहां पे भी जाके यही चीज मिलता है कि एक्चुअली डबलेट क्यों मिल रहा है, क्योंकि this NMR technique cannot distinguish between axial and equatorial fluorine। जब जाके axial and equatorial को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे सिंपली फ्लोरीन एंड दिस वन, मतलब these all fluorines are equivalent। अगर ये all fluorines are equivalent है तो जाके फ्लोरीन एंड पी के साथ क्या होगा, यहाँ पे जाके ये देगा एक NMR सिग्नल, दैट विल बी द डबलेट। क्योंकि जाके फ्लोरीन इसका हाफ है तो 2Ni+1 के हिसाब से यहाँ पे जाके एक डबलेट मिलेगा, क्योंकि ऑल फ्लोरीन आर इक्विवेलेंट इन द NMR टेक्निक। NMR टेक्निक जो है, NMR इनको समझता है कि ऑल द फ्लोरीन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि जाके ये इतना फास्ट होता है यहाँ पे जाके दिस Beredicido रोटेशन, दिस रोटेशन इज टू मच फास्ट that NMR technique cannot distinguish between axial and equatorial positions, and that is why only doublet spectrum is observed। Okay, now you will see here
अगर जाके आप क्या करेंगे, फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स 5 कोऑर्डिनेट मेन ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड्स एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टेट्रागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर इज वेरी इज सफिशिएंटली लो, दैट इज व्हाई यहाँ पे जाके स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिडिटी आपको देखने को मिल रही है। मगर अगर हम जाके यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम जाके इसको जाके क्लोरीन यहाँ पे PCl2F3 को देखेंगे, क्योंकि बल्कि सबस्टिट्यूएंट है क्लोरीन, आप जाके it will they do not prefer to occupy the axial position. Generally यहाँ पे जाके जो process of interconversion between this TBP to square pyramidal and square pyramidal to TBP वो जाके slow down होगा, वो जाके होगा तो जरूर बट जाके स्लो डाउन होगा, क्योंकि जाके क्लोरीन डज नॉट प्रेफर टू गो टू द एक्सियल पोजीशन। अब क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर जब देखने को मिलता है तो वही डबलेट मिलता है जो पहले मिल रहा था, ठीक है। तो बट जब -22 डिग्री पे देखने को मिला तो वहां पे भी वही चीज देखने को मिलता है। धीरे धीरे टेम्परेचर को जब हम कम करते हैं, टेम्परेचर को कम किया गया, NMR स्पेक्ट्रम यहाँ पे जाके कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया गया, तो क्या हुआ कि एक टाइम आया जब टेम्परेचर पहुंचा -143 डिग्री सेल्सियस। दिस NMR ग्राफ इज एट -143 डिग्री सेल्सियस। द एक्सचेंज इज स्टॉप्ड। उस टाइम जो एक्सचेंज है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में वो जाके स्टॉप हो गया। जब जाके एक्सियल एंड इक्वेटोरियल यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया तो उससे क्या यहाँ पे जाके क्या देखने को मिला, वो जाके आप देखिए। यहाँ पे जाके 2 डबलेट मिले और जाके यहाँ पे जाके 2 ट्रिपलेट्स मिले। These doublets are due to the axial and these triplets are due to the equatorial। अब जाके मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आपको बताऊंगा बेटा। टेम्परेचर 22 पे -22 डिग्री पे जो सिंगल डबलेट मिल रहा है वो जाके ड्यू टू दिस P31 एंड F31 कपलिंग की वजह से। बट जब टेम्परेचर -143 डिग्री हुआ तो डाउनफील्ड डबलेट जो होता है वो एक्सियल फ्लोरीन एटम की वजह से होता है, एंड जो अपफील्ड होता है ट्रिपलेट वो इक्वेटोरियल की वजह से। क्यों? द सिंगल फ्लोरीन एटम इज फर्दर स्प्लिट बाय द 2 एक्सियल फ्लोरीन एटम। जो इक्वेटोरियल का जो फ्लोरीन है वो जाके फर्दर स्प्लिट होता है किसमें? ट्रिपलेट में होगा वो, बाय 2 एक्सियल फ्लोरीन एटम्स तो जाके इनटू ट्रिपलेट्स, ठीक है। इक्वेटोरियल जाके किसमें जाके यहाँ पे होगा स्प्लिट ट्रिपलेट में, 2 ट्रिपलेट्स में। द 2 एक्सियल फ्लोरीन एटम्स इज स्प्लिट इनटू डबलेट बाय सिंगल इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम। क्योंकि जाके ध्यान देंगे आप, मैं जो बात इस वक्त कर रहा हूँ वो PCl, वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप मत समझेंगे कि यहाँ पे सर ने यहाँ पे डबलेट ही क्यों बना, यहाँ पे तो क्वार्टेट बनना चाहिए जो हम सोच रहे थे पहले। बट वी विल टॉक अबाउट दिस PCl2F। इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इस तरीके से, यहाँ पे फ्लोरीन एंड फ्लोरीन होगा, ये इसको पूरा ध्यान देना बेटा, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन हियर and one fluorine will be there। एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। वो तो आपको पता है कि क्यों क्लोरीन होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो जाके बता दिया है एक बार। देखो बेटा अब क्या होता है, अब यहाँ पे जाके जो एक्सियल पोजीशन था, इस एक्सियल पोजीशन की वजह से यहाँ पे जाके क्या देगा, पहले इसकी वजह से यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट है एक्सियल पोजीशन वाले, तो इससे जाके एक डबलेट मिलेगा। तो जब डबलेट मिला वो जाके डबलेट है। फर्दर जो डबलेट है वो जाके इस इक्वेटोरियल फ्लोरीन की वजह से यहाँ पे जाके डबलेट फर्दर क्या होगा, स्प्लिट होगा इनटू डबलेट्स। तो जाके 2 डबलेट फर्दर स्प्लिट होगा, डबलेट ऑफ डबलेट्स यहाँ पे मिलेगा। बट अगर आप इसको देखेंगे, ये जाके पहले क्या देगा, इस फास्फोरस की वजह से ये देगा पहले डबलेट, तो जाके दिया ये डबलेट। फिर जाके ये वाला डबलेट जो होगा ये इन 2 एक्सियल फ्लोरीन की वजह से 2ni+1 की यहाँ पे जाके n=2, क्योंकि 2 एक्सियल फ्लोरीन है उसकी वजह से यहाँ पे 2ni+1 जो फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे जाके आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जाके जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो जाके यहाँ पे क्या होता है, 2 फ्लोरीन एटम्स की वजह से ये वाला फ्लोरीन जो होगा ये स्प्लिट होगा फर्दर इनटू कितना बनेगा, यहाँ पे जाके ट्रिपलेट बनेगा। तो जाके ये इक्वेटोरियल की वजह से यहाँ पे ये होगा, these 2 triplets will be due to the equatorial and these 2 doublets will be to the axial। तो इस तरीके से यहाँ पे जाके पता चला कि एक्चुअली होता यही है कि जाके पहले होता है कि TBP होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाद में जाके वो स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट होता है, फिर जाके वो फिर से TBP बनता है। एंड दिस रेट इज वेरी फास्ट, दैट cannot be visualized and that cannot be noticed through NMR technique। But once we decrease the temperature and the exchange is stopped, जब जाके exchange stop होती है then we can see what actually happens। तो जाके पूरी यूनिट में आपको यही चीज देखना है।
हर एक एग्जाम्पल को हम उठाएंगे, पहले देखेंगे फ्लैक्शनलिटी में, पहले देखेंगे जनरल एनएमआर, वहां पे जाके एक या दो पीक मिलेंगे, जो एक्सपेक्ट हम करेंगे वो नहीं मिलेगा पहले। बाद में जब टेम्परेचर को जाके डाउन करेंगे, इसका मतलब हम जाके जो यहाँ पे जाके एक्सचेंज है उसको हम स्टॉप करेंगे, यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे जाके मॉलिक्यूल को सीज करेंगे, फिर जाके जो हम एनएमआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जाके आपको मिलेगा। ये पूरा यूनिट इसी के बेस पे डिपेंड है। अब जाके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जाके जो आपको जरूरी मुझे बताने हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से एनएमआर किस टेक्निक पे जाके कितना टाइम टाइम होना चाहिए यहाँ पे जाके, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो होप सो आपने इसको समझा होगा अच्छे से। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अनदर एग्जांपल।